Hi guys, welcome back to my channel. I am सिद्धार्थ एंड आज का जो लेक्चर होने वाला है हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी हम थेराप्यूटिक अप्रोचेस कर रहे हैं। जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको स्टार्ट करवा दिया है वैसे ही ये वाला चैप्टर भी मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ थ्रू एनसीईआरटी। नोट्स तो है ही है बट इजी रहे मतलब हमें बुक से भी पढ़ना चाहिए बिकॉज बोर्ड्स जो हैं वो तो बुक से ही पूछेगा, राइट? तो थेराप्यूटिक अप्रोचेस मैं यहाँ से स्टार्ट कर एनसीईआरटी से स्टार्ट करवा रहा हूँ। सो आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर you would be able to familiarize yourself with the basic nature and process of physiotherapy, sorry, psychotherapy, I'm so sorry, psychotherapy। साइकोथेरेपी का थोड़ा उसका मतलब आपको बेसिक समझ आ जाएगा व्हाट इज इट अबाउट, व्हाट इज बेसिक, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी, व्हाट इज द बेसिक नेचर। appreciate that there are different types of theories for helping people, कि भाई अलग अलग थेरेपीज होती हैं फॉर हेल्पिंग पीपल अंडरस्टैंड द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ intervention and know how people with mental disorders can be rehabilitated, कि भाई वो वापस हाउ कैन दे द पीपल विद मेंटल हाउ कैन दे बी हील्ड, हाउ कैन दे बी rehabilitated, राइट? सो इसमें कंटेंट देख लेते हैं क्या है। नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी, therapeutic relationship, types of therapies, steps in the formation of classical of a client's problem, behavior therapy, relaxation procedures, cognitive therapy, humanistic existential therapy, alternative therapies, rehabilitation of the mentally ill। तो ये आपके contents हैं एंड इसमें मोस्टली जो आपके टाइप्स ऑफ थेरेपीज हैं, राइट? ये ज़्यादा है मतलब इससे थोड़ा सा चैप्टर ज़्यादा लग रहा है बट डोंट वरी, आई इंश्योर दैट आप लोगों को चैप्टर थोड़ा इजी लगे। मैं डिफरेंट पार्ट्स में डाल दूंगा ये एंड देखते हैं और क्या 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 सीरीज बना सकते हैं। जैसे अभी हम लोग आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, नेचर एंड प्रोसेस ऑफ psychotherapy। So in the preceding chapter, you have studied about the major psychological disorders and the distress caused by them to the patients and others. In this chapter, you will learn about the various therapeutic methods and used by psychotherapies to help patients. There are various types of psychotherapies. Some of them focus on acquiring self-understanding. Other therapies are more action oriented. All approaches hinge on the basic issue of helping the patient overcome his or her debilitating condition। तो क्या भाई ये बोल रहे हैं कि प्रीवियस चैप्टर में हमने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में मतलब पढ़ा था, राइट? मेरे ख्याल में नहीं है, मैं इसको इस चैप्टर का भी लाभ दूंगा सून बट हम यही बात कर रहे हैं कि भाई जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमने मतलब लास्ट चैप्टर में थे, हमने उसमें मतलब पढ़ा था, राइट? और उससे क्या डिस्ट्रेस होता है कॉज बाय द पेशेंट एंड अदर्स, राइट? इधर लिखा है। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, वी लर्न अबाउट द वेरियस थेराप्यूटिक अप्रोचेस और उनके मेथड्स जिससे पीपल कैन ओवरकम देयर। Like we learn how people with mental disorders, right? How can they overcome? How can they use these therapeutic approaches or methods?
psychotherapy to help their patients. How, well, by using these psychotherapy, like these therapeutic methods, right? So how can they overcome their disorders? All therapeutic, sorry, the effectiveness of therapeutic approach for a patient depends on a number of factors. Mhm. Factors such as severity of the disorder, disagree of distress by others, and the availability of the time, effort, and money, among others. All therapeutic approaches are corrective and helping in nature. All of them involve an interpersonal relationship between therapist and the client or patient. Some of them are directive in nature, such as psychodynamic, while some non-directive, such as person-centered. Uh, See, कुछ डायरेक्टिव है नेचर. सब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो हम पढ़ने वाले अलायंस, एक अलायंस वर्ड आप सुनोगे. सॉरी. तो कुछ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं विच आर डायरेक्टिव इन नेचर. डायरेक्टिव हो गए जैसे आपका क्लाइंट है, पेशेंट है. सम ऑफ देम आर नॉट नॉन डायरेक्टिव, पर्सन सेंटर्ड है. तो हम इस चैप्टर में ब्रीफली डिस्कस करेंगे. बोला पर्सन सेंटर्ड है, राइट? तो इट्स डायरेक्टिव नहीं है, नॉन डायरेक्टिव. नेचर एंड प्रोसेस ऑफ psychotherapy. Psychotherapy is a voluntary relationship between one seeking treatment or the client who treats or the therapist. साइकोथेरेपी क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से बन जा रहा है आपका. व्हाट डू यू मीन बाय साइकोथेरेपी? साइकोथेरेपी क्या है? कि वॉलंटरी रिलेशनशिप जिसमें वन इज सीकिंग ट्रीटमेंट दैट और द क्लाइंट, एंड द वन हु ट्रीट्स इज और द थेरेपिस्ट और द थेरेपिस्ट. ये जो एक ट्रीटमेंट सीख कर रहा है वो है आपका क्लाइंट, एंड जो दूसरा है वो थेरेपिस्ट, या हाँ जो ट्रीट कर रहा है उस मतलब क्लाइंट को, उसको थेरेपिस्ट भी बोलते हैं. व्हाट इज द पर्पस? The purpose of the relationship has helped to help the client to solve the psychological problems being faced by her or him. The relationship is conducive for building the trust of the client so that problems may be freely discussed. Right. अब क्या हो रहा है? पर्पस क्या बोल रहा है? पर्पस ये है कि भाई जो क्लाइंट ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, जो भी उसका मतलब डिसऑर्डर है ना, वो या कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो वो खुले बता सकता है. एक अगर एक रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड द थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट, तो क्या हो जाएगा कि भाई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है, मतलब उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है क्लाइंट के अंदर, वो बोलेगा है ना थेरेपिस्ट को, और थेरेपिस्ट करेगा हेल्प. ठीक है, तो ये हो गया. द रिलेशनशिप इज कंडक्टिव फॉर building the trust of the client so that problems may be freely discussed. अब relationship conductive. Why conductive? For building the trust. ये conductive क्यों है? For building trust because क्योंकि मैं जैसे मैंने बोला खुल के वो डिस्कस कर सकते हैं ना, खुल के बता सकते हैं. क्लाइंट जो है वो खुल के बता देगा कि भाई भाई ऐसे नहीं बोलेगा, मतलब थेरेपिस्ट को बोलेगा कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ,
कोई भी अगर डिसऑर्डर उसको लग रहा है, मतलब ऐसे तो वो नहीं बोलेगा कि भाई मुझे ये डिसऑर्डर है। ऑफ कोर्स वो थेरेपिस्ट को बताएगा कि ये मुझे साइंस हो, मतलब सिम्टम्स बताएगा, साइंस बताएगा, तभी तो मतलब वो बता पाएगा ना, आइडेंटिफाई कर पाएगा कि भाई इसको ये डिसऑर्डर है, तो इसके लिए हम लोग ये वाला थेरेपी थेरेपी वाला ये थेरेपी इसको इसके साथ यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आप ये यही बोलता है। Psychotherapies aim at changing the maladaptive behaviors, decreasing the sense of personal distress, and helping the client to adapt to better his or environment. एक unusual behavior, maladaptive एक unusual behavior ये बोल सकते हैं of the client. Unusual. Unusual behavior, ठीक है। तो ये चेंज साइकोथेरेपी यही एम करते हैं कि भाई मुझे मतलब इसमें ये मैं हेल्प कर सकता हूँ, इसमें ये हेल्प कर सकता है सेंस कि भाई मैल अडेप्टिव बिहेवियर को डिक्रीज कर सकते हैं, या डिक्रीज सेंस ऑफ पर्सनल डिस्ट्रेस, उसको जो डिस्ट्रेस हो रहा है क्लाइंट को, वो उसको जो सेंस है वो थोड़ा डिक्रीज कर सकते हैं, एंड हेल्पिंग द क्लाइंट टू अडेप्ट बेटर टू हर और हिज environment. Inadequate inadequate partial occupational social advancement also requires major changes to be made in an individual's personal environment. All psychotherapies have approaches of the following characteristics. There is systematic application of principles first, understanding the different theories of therapy. Person who have received practical training under expert supervision and practice psychotherapy, not everybody. तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बोल रहे हैं कि भाई जो भी मतलब पर्सन हु हैव रिसीव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, है ना। अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है अंडर अंडर एन एक्सपर्ट सुपरविजन, कोई देख रहा है कि भाई ये ठीक कर रहे हैं, ये थेरेपी ये जो लिखा गया ठीक कर रहा है कि नहीं, तभी वो कर सकते हैं। एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, मतलब कि एक एप्लीकेशन सिस्टमैटिक तरीका है उसको करने का, कि आप ऐसे कोई भी नहीं आप यूज करें, मतलब ये थेरेपी अच्छा ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी ऐसी आप यूज करें नहीं, आपको जानना पड़ेगा कि भाई क्लाइंट का मतलब वो क्या व्हाट व्हाट एन इंडिविजुअल इज फेसिंग, उसको कहाँ डिस्ट्रेस आ रहा है, तभी वो कर पाएगा, ऐसे तो नहीं कर पाएगा ना। सिस्टमैटिक है कि भाई अगर आप बोल रहे हो कि भाई जैसे इसको ये मतलब अगर इसको ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मतलब पढ़ेंगे हम लोग ऐसा कि बिहेवियर थेरेपी, अगर उसको बिहेवियर थेरेपी की जरूरत हुई फिर, है ना, टोकन इकोनॉमी सब जो हम पढ़ने वाले हैं, अगर उसको मतलब कोई रिवॉर्ड वाला ये जो मतलब जो चाहिए रहता है ना, काम करने का मन नहीं कर रहा, उसमें ह्यूमनिस्टिक ऐसे नहीं लगेगा ना, आपको समझना पड़ेगा, राइट, आपको समझना पड़ेगा क्लाइंट का क्या प्रॉब्लम है, राइट, तभी आप हेल्प कर सकते हो। An untrained person may unintentionally cause more harm than any good. अब क्या क्या लिखा है, दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एन अनट्रेन्ड पर्सन may unintentionally cause more harm than any good। भाई कि अगर कोई पर्सन ट्रेंड ही नहीं है, अगर आप ऐसी आपको करा रहे हो, है ना, अगर आप ऐसी उसका वो ले रहे हो, मतलब थेरेपी, मतलब उसने साइकोलॉजी पढ़ी है, उसने प्रैक्टिकल किया ही नहीं है ना, तो उसने ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छे से नहीं की, अब क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, थ्योरी वाइज चलो पढ़ लिया है,
बट अगर प्रैक्टिकली अगर वो चीज़ नहीं कर पाया ना, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है किसी भी फील्ड में। प्रैक्टिकल चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर आपको प्रैक्टिकली नहीं आता, देन हाउ वुड यू डू इट, राइट? अगर सो an untrained person may unintentionally cause more harm than any good, का यही मतलब है कि भाई आपको, मतलब इसका मैं यही बोलूँगा कि अगर प्रैक्टिकल आपके पास है, आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है, प्रिपेयर्ड हो, तभी आपका सुपरविजन के मतलब एक एक्सपर्ट सुपरविजन जो है उसकी मदद से आपने देख मतलब उसने बोला कि भाई ये कर सकता है। अब कोई भी इसको मतलब क्लाइंट आ जाए तो ही कैन हेल्प। राइट, तो ये okay, the therapeutic situation involves therapeutic situation involves a therapist and a client for who seeks and receives help for his or her emotional problems. This person this person is the focus of attention in the therapeutic process. कि भाई ये हमें पता है कि भाई एक थेरेपिस्ट होता है और एक क्लाइंट होता है। थेरेपिस्ट हेल्प करता है और क्लाइंट को ट्रीटमेंट सीख करता है, मतलब वो सीक्स एंड रिसीव्स हेल्प। द interaction of these two people interaction of these two persons, the therapist and the client, results in consolidation formation of the therapeutic relationship. This is confidential, interpersonal, and dynamic relationship. This human relationship is central to any sort of psychological theory, therapy, and vehicle for change. मतलब एक कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, डायनामिक रिलेशनशिप, मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप कि भाई इट शुड नॉट बी फ्रेंडली। ये चीज आप ध्यान रखो जब थेरेपिस्ट का जब रिलेशनशिप होता है, राइट, तो इट शुड बी फ्रेंडली। फ्रेंडली तो होना ही नहीं चाहिए, फ्रेंडली तो नहीं होना चाहिए, राइट? नहीं, इट शुड नॉट बी फ्रेंडली। मतलब बस प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, जो भी डिस्ट्रेस में है क्लाइंट उसका वो मतलब वो चीज़ आपको सॉल्व करना थेरेपिस्ट को। अदरवाइज कोई फ्रेंडली बिहेवियर नहीं हो सकता इसमें। ऑल साइकोथेरेपी aims at a few or all of the following goals: reinforcing client's resolve for betterment, क्लाइंट को क्लाइंट का जो डिस्ट्रेस है उसको डिक्रीज करना है, थोड़ा सा उसको बेटर फील कराना, लेसनिंग इमोशनल प्रेशर, इमोशनली उनको उसको प्रेशर नहीं डालना, लेस ज़्यादा कम करना है। अनफोल्डिंग द पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव ग्रोथ, पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव ग्रोथ, ग्रोथ पॉजिटिव है, right? Modifying habits, changing thinking patterns, increasing self awareness, improving interpersonal relations and communication,
facilitating decision making, becoming aware of one's own choices in life, retaining to one's social environment in more creative and self-aware. भाई ये सेल्फ अवेयरनेस थोड़ा सा ज़्यादा उसको बढ़ाना, उसके थिंकिंग पैटर्न्स चेंज करना फॉर मेकिंग बेटर डिसीजंस. हाँ, facilitating decision making, should be aware of one's choices in life, कि if that person is making the correct decision or not, उसका choice ठीक है कि नहीं, right? Relating to one's social environment and more creative and self-aware माना, क्योंकि वो self-aware माना उसको, उसका जो self-awareness है वो होना चाहिए, should be more creative. अब आते हैं जिसमें questions बन सकते हैं. Therapeutic relationship. फर्स्ट तो अलायंस. अलायंस क्या होता है? The special relationship between the client and the therapist is known as therapeutic relationship or और अलायंस. भाई ये आपका आंसर हो गया 2 मार्क्स का. ये तो 2 मार्क्स का ही आएगा. राइट. So it is neither a passing acquaintance nor a permanent and lasting relationship. कि भाई बोल रहे हैं कि एक ऐसे फ्रेंडली बिहेवियर तो नहीं होना चाहिए, या परमानेंट मतलब ऐसे फ्रेंड परमानेंटली ऐसे एक्वेंटेंस वाला जो मतलब फ्रेंडली बिहेवियर नहीं होना चाहिए, और लास्टिंग रिलेशनशिप है ना, कि भाई ऐसे फ्रेंडली बिहेवियर कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं चलता. थेरेपी में आप बस अपना जो भी मतलब आपका क्लाइंट का जो भी डिस्ट्रेस है ना, या फिर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मेजर डिसऑर्डर, उसको सॉल्व रिजॉल्व करके बस यही रिलेशनशिप उतना ही होना चाहिए बस. अब इसमें दो मेजर ये भी क्वेश्चन आ सकता है. There are two major components of a therapeutic alliance. The first component, contract contractual nature of the relationship, in which two willing individuals, the client and the therapist, enter into the relationship mm, which aims at helping the client overcome his or her problems. The second component of therapeutic alliance is a limited duration of the therapy. लिमिटेड ड्यूरेशन मतलब भाई जितने भी सेशंस है आप आओ, करो अपना मतलब अपने बेटरमेंट के लिए, क्लाइंट के बेटरमेंट के लिए, उसके बाद फिर हो गया, आप अपने घर काम, बस बस वही अलायंस उतना ही तक रहेगा और नहीं बढ़ेगा. ठीक है गाइस, अब एक लिए इतना ही करते हैं आज, इतना ही करते हैं बस. हम और नेक्स्ट क्लासेस में भी हम लोग करते रहेंगे. So thank you guys for watching. I hope you guys liked it, and please do subscribe to my channel, and I'll see you soon. Thank you.